میں صرف 12 سال کا تھا جب میری شادی 9 سالہ بچی سے کر دی گئی۔ ہم ایک کمرے میں سونے لگے۔ میرے رشتے دار مجھ سے سہاگ رات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ جب میں کچھ نہ بتا پایا تو وہ کہنے لگے کیا تم نامرد ہو؟ انہوں نے مجھے سہاگ رات کے بارے میں سب کچھ سمجھایا۔ رات جب میں نے وہ سب کیا تو میری چینخیں، میری عمر 12 سال تھی جب میرا نکاح میری کزن ملائکہ سے بڑی کم عمری میں کر دیا گیا۔ وہ بیچاری اس وقت صرف 9 سال کی تھی، ٹھیک سے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا۔ میرے چچا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا انگوٹھا نیلی سیاہی میں بھگویا اور نکاح نامے پر لگا دیا۔ پھر میرے ابا نے بھی ایسے ہی کیا۔ یوں ہم دونوں کا نکاح ہو گیا تھا، بلکہ رخصتی بھی ہو چکی تھی۔ نہ میں جانتا تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے اور نہ اسے پتا تھا کہ شوہر کسے کہتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بس ایسے ہی ریت رواج تھے۔ وہ شلوار قمیض پہنے اور گھونگھٹ والا دوپٹہ سر پر لیے، گلے میں مالا، ماتھے پر لگی بندیا اور ہاتھوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں پہنے۔ الجھی سی تھی۔ میرے سر پہ بھی سہرا باندھ رکھا تھا جس پر پھول کلیاں لٹک رہی تھی۔ میں تب کوفت کا شکار تھا۔ رخصتی کرا کے میں ملائکہ کو اپنے گھر لے آیا۔ میں تو آپ کو اپنا نام بتانا ہی بھول گیا۔ میرا نام عمر ہے۔ امی بتاتی ہے کہ جب ملائکہ پیدا ہوئی تب ہی اس کو میرے نام کر دیا گیا تھا۔ بہرحال رخصتی کے وقت ملائکہ نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی اماں کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جانے والی، میں تائی کے گھر پر نہیں جاؤں گی۔ میری چچی کہنے لگی کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے اور شادی کے بعد تو ہر لڑکی کو اپنے سسرال جانا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں جانا کہیں پر بھی، اماں میں نہیں جا رہی۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ تائی نے اس کے منہ پر جو میک اپ کیا تھا وہ اس کے آنسو سے دھلنے لگے۔ بہرحال وہ رونا دھونا مچا کر اور اس بات پر راضی ہوئی تھی کہ گڈی اور گڈا لے کر ہی تائی کے گھر جائے گی۔ وہ میرے گھر آئی تو میں نے سب سے پہلے گھر آتے ہی اپنا سہرا اتار کر ایک طرف پھینکا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے اور میں تو سہرے کو پہن کر نہ جانے کی سزا میں پھنس گیا تھا۔ میں نے کہا اماں مجھے بھوک لگی ہے۔ اماں نے کہا کہ اچھا دے رہی ہوں، کھانا بارات میں کیوں نہیں کھایا تو نے؟ میں نے کہا اس سہرے میں کھانا کھایا جاتا ہے۔ اماں مجھے کھانا دینے لگی کیونکہ چچی نے کھانا باندھ کر ہمارے ساتھ ہی بھجوایا تھا۔ میں کھانا کھا رہا تھا اور سامنے ملائکہ اپنی گڈی اور گڈے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی تو اماں نے مجھے کمرے میں بھیج دیا، البتہ ملائکہ کو اپنے ساتھ سلانے لگی۔ جب میں نے دیکھا کہ اماں ملائکہ سے کہنے لگی کہ آج کے بعد برتن تم دھو گی۔ اس وقت وہ 9 سال کی تھی۔ کہنے لگی تائی اماں مجھے تو برتن دھونے نہیں آتے۔ میری ماں کہنے لگی اچھا میں سکھا دوں گی، تو اماں نے اس کو برتن مانجنے سکھائے تھے۔ یہ اس کا پہلا کام تھا کہ اس نے ہمارے گھر پر کرنا شروع کیا۔ میں اسکول پڑھتا تھا۔ جب اسکول گیا تو لڑکوں نے میرا بڑا مذاق اڑایا۔ آگے چھوٹے دولہے میاں مجھے بڑی شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یوں کم عمری میں شادی کرنا میرے لیے ایک عذاب بن جائے گا۔ لڑکے میرا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے تو چند سال میں ہی باپ بن جائے گا۔ یہ سن کر مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے گھر آ کر جب اماں کو بتایا تو اماں کہنے لگی پاگل، اس بات پر غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا اماں میں اسکول نہیں جاؤں گا، لڑکے میرا بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتی اڑانے دے، اب کسی کی خاطر ہم اپنے ریتی رواج تھوڑی بدل سکتے ہیں۔ ملائکہ سارے گھر کے برتن مانجھ کر ایک طرف رکھ کر کہنے لگی اماں اب میں اپنے گڈا اور گڈی کے ساتھ کھیلوں؟ وہ کہنے لگی ہاں کھیلو۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میری ملائکہ کے ساتھ بنتی نہیں تھی۔ جب بھی میں اس کی گڈی یا گڈے کو ہاتھ لگاتا وہ فوراً رونے پیٹنے لگ جاتی کہ تم توڑ دو گے میرے گڈے گڈی کو، ہاتھ مت لگاؤ۔ میں اسے کہتا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ کھیلنے دو، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ وقت یوں ہی آگے بڑھنے لگا تھا کہ جب میرے بچپن سے جوانی میں قدم رکھا تو میرے جذبات اور سوچ بدلنے لگی۔ اپنے مخالف جنس میں مجھے دلچسپی ہونے لگی۔ میں 16 سال کا ہو گیا تھا اور ملائکہ 14 سال کی۔ اب تو اماں کے ساتھ وہ ایسے کام کرنے لگی تھی۔ میں کچھ لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ وہ لڑکے کچھ آوارہ سے تھے۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے تم تو شادی شدہ ہو، چلو یہ بتاؤ بیوی کے ساتھ سہاگ رات منائی ہے یا نہیں؟ میرے لیے یہ الفاظ بالکل انجان تھے۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگے تجھے یہ نہیں پتا تو تم نے شادی کیوں کی ہے؟ میں کہنے لگا کہ وہ تو میرے ابا نے کر دی تھی۔ میرے دوست کہنے لگے
चल आज दिखाते हैं कि शादी के बाद सुहाग रात कैसे मनाते हैं। उनकी ये बात सुनकर मुझे कुछ हैरत हुई। वो मुझे कैसे घर के बाहर ले गए जिस घर में अभी कुछ देर पहले ही शादी हुई थी। उन लड़कों ने कमरे के सामने खड़े होकर बंद खिड़की को खोला और अंदर का मंजर देखने लगे। कहने लगे, चल अब तू भी देख। मैं उस वक्त इतना भी बड़ा ना था, लेकिन जो मंजर मैंने खिड़की के अंदर देखा, मेरे होश उड़ गए थे। मैं फौरन से पीछे हट गया। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं देखना, अब्बा यहाँ आ गया तो मुझे बहुत मारेगा। ये कहकर मैं घर आ गया, लेकिन मेरे वो दोस्त बार बार मुझे बीवी के करीब रहने के लिए उकसाते थे। कहते थे, क्या तू नामर्द है जो तुझे बीवी को देकर कुछ नहीं होता। उनकी बेहुदा बातों को सुन सुनकर मेरी नजर मलाइका पर अलग अंदाज से उठने लगी। मुझे वो अच्छी लगने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर ये खौफ भी मेरे अंदर मौजूद था कि अगर मैंने उसके साथ कुछ भी करना चाहा तो वो अम्मा को बता देगी। मैं मैट्रिक कर चुका था, कॉलेज हमारे गांव में था नहीं, इसलिए अब्बा ने मुझे शहर के हॉस्टल में डाल दिया। हम लड़के आपस में हर किस्म की बातें करते थे, इसलिए मुझे काफी बातों का इल्म हो गया था। जब भी मैं छुट्टी पर गांव जाता, अपने काम मलाइका से कहता, लेकिन वो वैसी ही थी, कहती, तुम्हारी मुलाजमा नहीं हो जो तुम्हारे काम करूं। मैं 20 साल का हो चुका था और 12वीं जमात में पढ़ता था। उसकी वैसी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आने लगता था। मैं उसका शौहर था, उसे मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए थी। मैं अब उससे गुस्से से देखने लगा। मैंने कहा, पूरे एक हफ्ते में बस एक दिन के लिए घर आता हूँ, तुम मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर सकती। वो कहने लगी कि इतने सारे तुम्हारे धोने वाले कपड़े होते हैं, वो भी इतने गंदे, क्या वहाँ मजदूरी करते हो? 2 घंटे लगते हैं मुझे सिर्फ तुम्हारे कपड़े हाथ से धोने में। मैंने कहा, कोई एहसान तो नहीं करती हो मुझ पर, ये तुम्हारा फर्ज है। वो कहने लगी, मुझसे नहीं होता ये सब। वो मेरे कपड़े तय करके रख रही थी जब मैंने उसे अपनी एक शर्ट इस्त्री करने के लिए कहा था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। मैं अभी बाहर अपने दोस्तों से मिलकर आया था, वो मेरे कमरे में थी, मेरे कपड़े तय करके मेरे बैग में रख रही थी। मैंने पूछा, अम्मा कहाँ है? कहने लगी, अम्मा और बाकी सब खाला के घर गए हैं। ये सुनकर मेरा दिल अंदर से फिसलने लगा था। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही मैं उसके पास आया, वो अपने काम में मगन थी। उसे गौर से देखने लगा। उसके बाल उसकी कमर तक आने लगे थे। बेनियाज से दुपट्टा उसने गले में पहन रखा था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया तो वो बुरी तरह से चौंकी थी। मैंने कहा, दिखाओ अपने हाथ, मेरे कपड़े धोने से तुम्हारे हाथ कितने घस गए हैं। उसने फौरन से अपना हाथ मेरे हाथ से खींचा था। फिर कमरे का दरवाजा बंद देखकर मुझे हैरत से देखने लगी। फिर कहने लगी, दरवाजा क्यों बंद किया है तुमने? मैंने कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। कहने लगी, क्या? मैंने फिर से उसका हाथ पकड़ा। मैंने कहा, तुम जानती हो तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? कहने लगी, क्या तुम्हें नहीं पता? हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा, जानता हूँ, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। कहने लगी, तुम मेरे ताया साथ हो। मैं कहने लगा, इसके अलावा भी कुछ हूँ। मेरी नजरों में वो रफ्तगी भरी थी। वो कुछ नर्वस हुई थी। फौरन से कमरे के दरवाजे के पास जाने लगी, लेकिन मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। दिल अजीब अजीब सी ख्वाहिशात करने लगा था। कमबख्त, जब से लड़कों के मुंह से मैंने उनकी गर्लफ्रेंड की बातें सुनी थी, जी चाहता था मैं भी वैसा ही करूं। और वो तो फिर मेरी बीवी थी। मैंने उसे अपनी जानिब खींचा था। वो बेसाख्ता मेरे साथ लग गई। मत पूछें, दिल में ओधम सी मच गई थी। मैंने उसे अपने हसार में ले लिया। मैंने कहा, मैं तुम्हारा शौहर भी हूँ, जानती हो शौहर क्या होता है? मेरा ये कहना था कि वो मेरे हसार में कसमसाने लगी। कहने लगी, उमर मुझे छोड़ो वरना अम्मा को बता दूंगी। मैंने कहा, मेरी बात का जवाब दो। जानती हो शौहर क्या होता है? इससे पहले कि मैं कुछ और बेखुदी में आगे बढ़ता, उसने मुझे पूरी कुव्वत से धक्का दिया था। मैं पीछे जा गिरा था। वो फौरन से कमरे से बाहर निकल गई। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, मलाइका की बच्ची, आज नहीं बचोगी मुझसे। वैसे भी अम्मा घर पर नहीं है। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकला, बाहर का मेन गेट खुला हुआ था। वो शायद बाहर जा चुकी थी। बाहर उसकी सहेलियां थी, शायद वो वहां चली गई थी, लेकिन मुझे बेचैन कर गई थी। मेरे दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से सुनाते थे, हालांकि मेरी ही उम्र के थे, लेकिन इतनी सी उम्र में उनकी लड़कियों से दोस्ती थी। उनके साथ वो रेस्टोरेंट में जाते थे, उन्हें लंच भी कराते थे और बहुत कुछ करते थे। कभी उनके साथ पार्कों में चले जाते, कभी कोने में बैठकर दरख्त के ओट में बड़ा कुछ करते थे।
मैं ये सारी बातें सुनता तो मुझे बुरा नहीं लगता था, बल्कि अच्छा लगता था। शायद मेरी उम्र कुछ ऐसे हिस्से में आ पहुंची थी कि ये सब कुछ बड़ा दिलचस्प सा लगता था। जब अम्मा पड़ोस से वापस आई तो मलाइका भी उसी वक्त पहुंची। मुझे ये डर था कि कहीं अम्मा के सामने जुबान न खोल दे। अम्मा कहने लगी कि रात का खाना बनाया है मलाइका तुमने? उसने कहा नहीं अम्मा। कहने लगी क्यों नहीं बनाया? मैं तुम्हें कह कर गई थी। कहने लगी वो उम्र। मैंने कहा अम्मा वो मेरे कपड़े तय कर रही थी। फिर उसकी सहेली ने उसको आवाज दे दी। मैंने उसे कहा था कि जाओ अपनी सहेली के घर चले जाओ। अम्मा कमर पर हाथ रखे कहने लगी तूने किस खुशी में इसको भेजा था? अब खाना कौन पकाएगा? एक तो मैं थक हार कर पहुंची हूँ और अब हांडी मेरे सर पर पड़ी है। पता नहीं ये लड़की कब घर संभालेगी। मैंने कहा अम्मा इसकी उम्र तो देखो, इतनी बड़ी थोड़ी है, अपनी रिमशा जितनी तो है। रिमशा तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती। आपने सारे काम मलाइका के सर पर डाल रखे हैं। अम्मा कहने लगी तुम इसकी ज्यादा हमदर्दी नहीं करने लगे। ये इस घर की बहू है तो ये सारे काम करेगी ना। बेटियां तो वैसे भी पराई होती हैं। मायके में सुख के 4 दिन गुजार ले, बस वही उनके सुख के दिन होते हैं। ससुराल वाले थोड़े इतने नखरे बर्दाश्त करते हैं। मैंने कहा तो चंद दिन उससे भी इसके मायके भेज दिया करें। मेरा ये कहना था कि मेरी अम्मा मुझे गुस्से से देखने लगी। कहने लगी तुझे हुआ क्या है? तुम्हें ज्यादा अपनी बीवी की हमदर्दी हो रही है। मैंने कहा मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। अम्मा मलाइका से कहने लगी चल जल्दी से प्याज लहसुन और अदरक काट दे। वो जल्दी से सब्जी काटने लगी, बार बार मुझे गुस्से वाली निगाह से देख रही थी। अगले ही रोज मैं हॉस्टल चला गया, लेकिन यह हफ्ता मेरा बड़ी मुश्किल से कटा था। अब की बार मैंने गाँव आने से पहले बहुत सारी कांच की चूड़ियां खरीदी थी। पहली बार मलाइका के लिए कुछ लेकर जा रहा था। जब मैं घर आया तो अम्मा को कढ़ाई वाली शॉल दी, अपनी बहनों को भी चूड़ियां दी। अलबत्ता मलाइका की चूड़ियां मैंने अपने सामान में ही रहने दी। ये सोचा कि इसे अपने हाथ से पहनाऊंगा। अव्वल तो वो मुझे अकेले मुयस्सर ही नहीं थी, हर वक्त किसी ना किसी के साथ रहती थी और अब तो वो मुझसे घबराने लगी थी। जहाँ मैं होता फौरन से वहां से भाग जाती। मैं जब भी छुट्टी पर गांव जाता मैं यही दुआ करता कि अम्मा कहीं आस पड़ोस में किसी के घर चली जाएं। एक दिन तो वो मेरे कपड़े धो रही थी और अम्मा उस वक्त अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी। छोटे बहन भाई गली में खेल रहे थे। जब मैं उसके पास आकर बैठ गया, वो डंडे मार मार के मेरे कपड़े धो रही थी। मुझे अपने पास बैठा देखा तो कहने लगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा बात सुनो, कपड़े धोने के बाद मेरे कमरे में आना, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहने लगी मैं नहीं आऊंगी, तुम बहुत बदतमीज हो। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत तोहफा लाया हूँ, मेरे कमरे में आओगी तो दिखाऊंगा। कहने लगी पहले कसम खाओ जो पहले तुमने किया था वो नहीं करोगे। मैंने कहा तुम आओ तो सही, नहीं करूंगा। तो वो कहने लगी कपड़े धोकर आती हूँ। मैंने जब देखा कि वो कुछ नरम पड़ी है तो मैं अपने कमरे में चला गया। कांच की चूड़ियों के साथ मैं उसके लिए चांदी का एक छल्ला भी लेकर आया था। मैं उसका मुंतजिर था। 1 घंटे के बाद वो आई थी। उसके आधे कपड़े पानी से भीगे हुए थे। शायद कपड़े रस्सी पर डालकर सीधा मेरे कमरे में ही आई थी। कहने लगी जल्दी जल्दी तोहफा दिखाओ, क्या लाए हो? मुझे रात के लिए हांडी भी चढ़ानी है। अम्मा उठ गई तो बहुत डांटेगी। मैंने कहा पहले कमरे का दरवाजा बंद करो। कहने लगी ना बाबा ना, दरवाजा बंद नहीं होगा, ऐसे ही खुला रहेगा। मैं उठा और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा अगर अम्मा ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। मैं कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद अलमारी की तरफ चला गया। अलमारी से कांच की चूड़ियां निकाली और चांदी का छल्ला निकाला। सुर्ख रंग की कांच की चूड़ियां देखकर उसकी आंखें चमकी थी। मैंने अपने दोस्तों से सुन रखा था कि लड़कियों के लिए तोहफा लेकर जाओ तो बदले में वो बड़ा कुछ करने की इजाजत दे देती हैं। वो कहने लगी उमर ये तो बहुत प्यारी हैं, क्या सच में तुम मेरे लिए लाए हो? मैंने कहा हाँ तुम्हारे लिए ही लाया हूँ और हर बार तुम्हारे लिए ऐसे ही तोहफे लाऊंगा। इससे पहले कि वो चूड़ियां पहनती मैंने उसके हाथ में वो चूड़ियां खुद पहनाई, चांदी का छल्ला भी पहनाया। वो बार बार चूड़ियां खनखनाती हुई बड़ी खुश थी। कहने लगी तुम बहुत अच्छे हो उमर। पहली बार उसके मुंह से मैंने अपनी तारीफ सुनी थी। इससे पहले मैं उससे कोई बात करता अम्मा उसे आवाज देने लगी। अम्मा की आवाज सुनकर तो जैसे उसकी रंगत फीकी पड़ चुकी थी। फौरन से कमरे से बाहर निकल गई। रात को बर्तन धोए जब उसके हाथ में चूड़ियां खनक रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी दिल फरेब मुस्कुराहट थी, बार बार मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। अम्मा कहने लगी कि इतनी ढेर सारी चूड़ियां तुम्हारे पास कहाँ से आई? इससे पहले कि वो कुछ कहती मैंने कहा अम्मा मैं लेकर आया था।
मेरी बात सुनकर अम्मा और अब्बा दोनों ने मुझे देखा था। कहने लगी, तू कब लेकर आया और क्यों लेकर आया? मैं रिमशा के लिए भी तो लाया था, आपके लिए भी चादर लेकर आया था, कढ़ाई वाली, तो जब आपने इतराज नहीं किया। अब्बा कहने लगे, हाँ हाँ अच्छा किया। फिर कहने लगी, तेरी पढ़ाई कब खत्म होगी? मैंने कहा, बस 2 साल में। वो कहने लगे, बस जैसे ही तेरी पढ़ाई खत्म होगी हम तेरी रुखसती करवा देंगे। ये सुनकर मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था। अम्मा कहने लगी, ऐसे कैसे करा देंगे? अरे जब तक अच्छे से नौकरी नहीं मिल जाती ऐसा कुछ नहीं करना। शादी कोई खेल थोड़ी है, जिम्मेदारी होती है। अभी तो इसके अपने बहन भाई छोटे छोटे हैं, इन सब का भी सहारा बनना है। आखिर इतना खर्च करके हम तालीम क्यों दिलवा रहे हैं? मेरे वालिद कहने लगे, कल को अपने मुंह से कहेगा तो क्या अच्छा लगेगा? हो जाएगा सब कुछ, अभी भी तो पूरा हो रहा है ना। लेकिन मेरी अम्मा कहने लगी, अभी मैं 5 साल तक कोई रुखसती नहीं करवाऊंगी, जब तक नौकरी ना कर ले, पैसा ना जमा कर ले, तब तक कोई रुखसती नहीं होगी। मैं चुप सा हो गया। अम्मा भी अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। बस एक मलाइका थी जिसके काम कभी खत्म ही नहीं होते थे। अभी भी सहन में झाड़ू दे रही थी। अब्बा भी अपने काम पर जा चुके थे। घर में कोई नहीं था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ से झाड़ू पकड़कर जमीन पर फेंक दिया। मैंने कहा, इधर आओ मेरे पास। वो कहने लगी, क्या है? मैंने कहा, तुम मुलाजमा नहीं हो इस घर की। कभी कभी तो मुझे इस पर बड़ा तरस आता था। ना उसे तालीम दिलवाई थी, ना ही उसे पढ़ना लिखना आता था, जबकि मेरी बहन स्कूल भी पढ़ने जाती थी और किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी। और एक वो थी, इतनी सी उम्र में सारे काम अम्मा ने उसके कांधों पर डाल दिए थे। अम्मा चाहती थी कि वो बस काम ही करती रहे और मैं कमाता रहूं। मैंने कमरे में ले जाके दरवाज़ा बंद कर दिया, उसे अपने साथ अपने बेड पर बिठाया। मैंने कहा, मुंह में ज़बान नहीं है तुम्हारे, चुपचाप सारे काम करती रहती हो। कभी कभी अम्मा को मना कर दिया करो। कहने लगी, मैं नहीं मना कर सकती क्योंकि उनको गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा तो कहने लगी, उमर मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये कहने के बाद उसकी आंखों में नमी उतरी थी। मैंने कहा, क्या बात है, मुझे बताओ। मलाइका ने अपना बाजू ऊपर किया। उसके हाथ पर जख्म का निशान था। मैंने कहा, ये क्या है? कहने लगी, ताई अम्मा ने गरम गरम चिमटा लगाया था क्योंकि रोटियां जल गई थी। ये देखकर मेरा दिल अंदर से कांप कर रह गया था। उसके बाद वो रोने लगी। मुझे अपनी माँ पर बेहताशा गुस्सा आया था। मैंने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए। मैंने कहा कि तुमने अब्बा को नहीं बताया? कहने लगी, ताई अम्मा मेरी जान निकाल देंगी। कहते हैं कि ढंग से काम सीखो। मैं करती तो हूँ सब ढंग से, अब मुझसे नहीं होता तो क्या करूँ? मैंने कहा, ऐसा करो, अपने कमरे में जाओ, जाके अपने कपड़े पैक करो। शहर जाने से पहले मैं तुम्हें चच्चे के घर छोड़ आऊंगा। अब्बा से भी कह दूंगा कि 8 दिन बाद तुम्हें लेने जाएंगे। कहने लगी, सच्ची? मैं उमर, तुम मुझे मेरी अम्मा के घर छोड़ने जाओगे? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं छोड़ूंगा। चलो जाओ, अपने कपड़े रखो। वो बड़ी खुश थी। जैसे उसने कपड़े पैक किए, मैं भी अपना बैग तैयार कर चुका था। अम्मा उठकर बाहर आई। कहने लगी, अभी तक सहन में झाड़ू नहीं दिया। मैंने कहा, अम्मा, मैं इसको चच्चे के घर छोड़ने जा रहा हूँ और 8 दिन ये वहीं रहेगी। अम्मा कहने लगी, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? मैंने कहा, इसका शोहर, मुझे हक है इस बारे में फैसला करने का। अम्मा कहने लगी, तुझे जुतियां लगाऊंगी, सारा बड़ापन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। मैंने कहा, अब्बा से मैं बात कर चुका हूँ, उन्हें कोई इतराज नहीं है। कहने लगी कि तुम्हें इतनी हमदर्दी का बुखार क्यों चढ़ रहा है? सब जानती हूँ मैं कौन से जज्बात तुम्हारे अंदर उबाल पैदा कर रहे हैं। मैंने कहा, कोई भी जज्बात नाजायज नहीं है और आप ही के पैदा किए हुए हैं। कहने लगी, मैं तो तुझे बड़ा सीधा साधा समझती थी, बड़ी तेज निकली है। वो कहने लगी, मैं तो इसको बड़ा सीधा साधा समझती थी, ये तो बड़ी तेज निकली है। ये तो मुझे इसने कुछ नहीं कहा, मैं अंधा हूँ, मुझे नजर आता है। क्या ये हमारी रिमशा से भी 3 महीने छोटी नहीं है? आपने सारे कामों की जिम्मेदारी इस पर डाल रखी है। क्या ये इंसान नहीं है? इसे आराम की जरूरत नहीं है क्या? अम्मा कहने लगी, जाओ, जहाँ जी चाहे छोड़ाओ और लेकर भी खुद आना, मैं नहीं चाहूंगी इससे लेने। मैंने कहा, मत जाइएगा, मैं शहर से वापस आऊंगा तो इसको लेता आऊंगा। चलो मलाइका, मैं इसे बाहर लेके आ।
उस वक्त सर्दियों की इब्तिदा थी। सूरज की तपश भी नहीं थी। मौसम बहुत अच्छा था। मैं उससे पहले बाग में ले गया। अपना और उसका सामान एक तरफ रखा। बाग में कीनू के दरख्त लगे हुए थे, लेकिन सब कच्चे थे। कोई कोई फल पका हुआ था। वो कहने लगी, कितनी खूबसूरत जगह है ये। मैंने कहा, हाँ। तो कहने लगी, मुझे दरख्त से वो पीले रंग का कीनू उतार दो। मैंने उसकी फरमाइश पर दरख्त पर चढ़ के कीनू उतार कर उसको दे दिया। वो बेहद खुश थी। कहने लगी, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज्यादा मेरा ख्याल रखते हो, मेरी खातिर अम्मा से भी उलझते हो। मैंने कहा, लेकिन तुम अच्छी नहीं हो। मेरी बात सुनकर वो मुझे देखने लगी। कहने लगी, मैंने क्या किया है? मैंने कहा, मेरा ख्याल नहीं रखती। कहने लगी, झूठ मत बोलो, तुम्हारे सारे कपड़े अपने हाथों से धोती हूँ। मैंने कहा, वो तो सबके धोती हो। कहने लगी, तुम्हारे कपड़े इस्त्री भी करती हूँ, तुम्हारा सामान भी तय करती हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ तो करती हूँ। मैंने कहा, ये सब नहीं, कुछ और करोगी? वो बोली, और क्या करूँ? मैं उसे एक दरख्त के पीछे ले गया। उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने कहा कि अगर तुमसे कुछ मांगूं तो क्या दोगी? कहने लगी, क्या? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, बहुत कुछ है। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा कि इस पर अपने होठों का लम्स दे दो। मेरी फरमाइश पर उसके चेहरे की रंगत उड़ी थी। मैंने कहा, बस इतनी सी मोहब्बत है तुम्हें मुझसे? कहने लगी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे 8 दिन अच्छे गुजर जाएंगे। वो जल्दी से अपना सामान के पास आ गई। कहने लगी, तुम्हें देर हो रही है, मुझे अम्मा के घर छोड़कर तुम्हें जाना भी तो है। मैंने कहा, जाना था। अगली बार तुम्हारे लिए एक और कीमती तोहफा लाऊंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगी? ये कहते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसका हाथ अपने होठों पर लगा दिया। उसने फौरन से अपना हाथ पीछे हटाया। मैंने कहा, मेरे इस तोहफे को हमेशा याद रखना। 8 दिन बहुत अच्छे से गुजरेंगे तुम्हारे। वो बेहद नर्वस हो रही थी। मैंने कहा, सुनो, मेरे बारे में सोचती हो? उसने नहीं में सर हिला दिया। मैंने कहा, सोचा करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचने लगा हूँ। मेरे पेपर्स होने वाले थे। पूरे 2 महीने में गांव में नहीं आ सकता था। मैंने चची के घर उसको छोड़ा तो चची बहुत खुश थी। बार बार मेरे सर की बलाएं ले रही थी। कहने लगी, जब भी मैं भाभी से कहती हूँ मलाइका को 2 दिन के लिए भेज दें, तो कहती है उमर ने मना किया है। सालों ही गुजर जाते हैं, घड़ी दो घड़ी ये बस भाभी के साथ ही आती है और मिल के चली जाती है। मैंने कहा कि अब आप इसे रखें, 8 दिन के बाद अब आकर ले जाएंगे। चची बहुत खुश थी और उसके बहन भाई भी उसके साथ लग गए थे। लेकिन वो मुझे देख रही थी, मुस्कुरा भी रही थी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि जब मैं आऊंगा तो मेरी मलाइका मुझे एक रोज ऐसे मिलेगी। मैं उसे मुस्कुराता छोड़कर गया था। अपने इम्तिहानात के चक्कर में बस रात को ही कुछ फुर्सत मिलती थी। आंखें बंद करता तो मलाइका का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आने लगता। मैं बड़ी बेचैनी से गांव जाने के लिए तैयार था। इस बार तो मैंने उसके लिए सुर्ख रंग का जोड़ा खरीदा था, लेकिन ये नहीं पता था कि इस बार जब मैं हॉस्टल से वापस आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरी बात बात पर मलाइका को याद करके मुस्कुराने को जी चाहता। मैंने पेपर्स दिए और उसके बाद मुझे छुट्टियां हो गई। मैंने खुशी खुशी अपना सामान पैक किया और इस बार मुझे पहले से भी ज्यादा मलाइका से मिलने की खुशी थी। सोचा, यकीनन इस बार वो मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देगी। मगर जब मैं घर गया, मुझे दरवाजे के बाहर रोने की आवाजें आ रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा मेरी माँ ने खोला था। वो बेहताशा रो रही थी। मुझे देखकर मेरे साथ लग गई और कहने लगी, हम बर्बाद हो गए, हम लोग लुट गए। मैंने कहा, हुआ क्या है? अम्मा, वो कहने लगी, अरे तेरी बीवी भाग गई है। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव के नीचे से जमीन खींच ली हो। मैंने कहा, अम्मा आप होश में तो हैं, भला वो कहाँ जा सकती है? अम्मा कहने लगी, मुझे क्या पता कौन सा आशिक पाल रखे थे उसने। मैं कहती थी ना आजादी दे ना दे, लेकिन तू उसे मायके छोड़ आया। 1 हफ्ते बाद तुम्हारा बाप उसे वापस लेकर आया था। तब से ही उसके तेवर मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। हर वक्त छत पर ही चढ़ी रहती थी। जब मैं पूछती तो कहती, कपड़े रस्सी पर डाल रही हूँ। मैंने कहा, माँ उसकी उम्र तो देखें, वो भला क्यों भागने लगी और आखिर कहाँ जाएगी? अम्मा कहने लगी, वो बहुत तेज लड़की थी। इतनी सी उम्र में ही उसने तो हमें जिल्लत और रुसवा करके रख दिया है। ये सब सुनकर मुझे यूं लगा
जैसे किसी ने मेरे जिस्म से जान निकाली हो। मैं अंदर आया तो मेरे बहन भाई चुपचाप गर्दन लटकाए बैठे थे। मेरे वालिद भी अपना सर पकड़े बैठे थे। अम्मा कहने लगी, परसों रात से ही वो गायब है। मैंने कहा, आपने मुझे बताने की ज़रूरत क्यों नहीं समझी? अम्मा कहने लगी, तुम इतनी दूर क्या बताते, हमारी तो इज्जत का जनासा निकल गया है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो तो मुझसे भी खौफ खाती थी। फिर जब मैं गया था वो बहुत खुश थी। मैंने तो हमेशा उसे घर के कामों में उलझा हुआ देखा था। बस मैं वही चारपाई पर ढह सा गया। मुझे अभी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरी अम्मा रोए जा रही थी। कुछ देर बाद मोहल्ले की कुछ औरतें हमारे घर आ गई और मुलाइका को बुरा भला कहने लगी कि इतनी कम उम्री में इसने इतना बड़ा काम कर दिया। हम तो इस लड़की को बड़ा सीधा साधा और नेक समझते थे। वो तो सर से दुपट्टा नहीं उतारती थी, अब देखो तो कैसे घटिया निकली है। मगर मेरा दिल इस बात पर आमादा ही नहीं था कि वो घर से भाग सकती है। वो तो ऐसी नहीं थी। मेरा उसके हाथ पकड़ने पर वो बदहवास सोने लगती थी। मेरी माँ से पूछे बिना तो वो अपने कमरे में नहीं जाती थी, फिर यूं घर से कैसे भाग सकती थी? मैं सोचने लगा, क्या ये सच नहीं हो सकता? मैं उसके बारे में इतना बुरा नहीं सोच पा रहा था कि वो इतना बड़ा कदम भी उठा सकती है। मेरी आंखों के सामने भी उसका कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था कि जब मैंने आखिरी बार उसे देखा था। कुछ ही देर बाद चची भी आ गई और रोने पीटने लगी। मेरी अम्मा चची से कहने लगी, तुम्हारी बेटी ने तो हमारी इज्जत का जनासा निकाल दिया है, अब तुम क्यों बीन करने आ गई हो? चची रोते हुए कहने लगी, वैसी बिल्कुल नहीं थी, वैसा कर ही नहीं सकती। मेरी बच्ची इतना बड़ा कदम उठा ही नहीं सकती। वो तो पानी तक आपसे पूछ कर पीती थी। मगर मेरी अम्मा आगे से कहने लगी, ये सब दिखावे की बातें थी। इतनी लंबी जबान थी तुम्हारी बेटी की, वो तो मैं ही थी कि सब बर्दाश्त कर लेती थी। उसे अपना समझ कर कभी उसके ऐप पर भी नजर नहीं डाली। मुझ पर तो वैसे कोई क़यामत टूट गई थी। ये कोई छोटी बात तो नहीं थी। घर में जो भी आता सो बातें करके चला जाता। मेरी चची रो धोकर वापस अपने घर चली गई। मलाइका को गायब हुए 4 दिन गुजर गए और ये 4 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारे थे। मैं किसी की बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। 5वें रोज सुबह हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो सुबह के 4 बजे का टाइम था। सब सो रहे थे, बस मैं ही जाग रहा था और सहर में रखी चारपाई पर ही लेटा था। दस्तक बड़ी आहिस्ता से हुई थी। मैंने उठकर जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मलाइका खड़ी थी। उसने काले रंग की चादर चेहरे पर लपेट रखी थी। उसे देखते ही मुझे यकीन आ रहा था कि वो मेरे सामने है। मैंने फौरन सवाल किया, कहाँ थी तुम इतने दिनों से? मेरे ये पूछने पर वो डगमगाते कदमों से अंदर आई और फिर वहीं गिरकर बेहोश हो गई। मैं मलाइका मलाइका कहकर उसे जगाने लगा। मेरी बुलंद आवाज सुनकर मेरी वालदा, वालिद और बहन भाई भी बाहर आ गए। मलाइका को यूं बेहोश देखकर पहले तो सब हैरान हुए। फिर अम्मा कहने लगी, आ गई है तुम मुंह काला कराकर। मैंने अपनी बहन से कहा कि ठंडा पानी लेकर आओ। जैसे ही पानी लेकर आई, मैंने ठंडे पानी के छींटे उसके मुंह पर मारने शुरू किए, लेकिन वो बेसुध लेटी रही। मैंने उसे अपनी गोद में भरा और अपने कमरे में जाकर लिटा दिया। मेरी अम्मा गुस्से से कहने लगी, जब ये होश में आए तो तलाक देकर इसे घर से निकाल देना। ऐसी लड़की को मैं अपने घर पर नहीं रखूंगी। मैंने कहा, अम्मा पहले आप इसे होश में आने तो दें, मैं इसे पूछूंगा कि इसके साथ क्या हुआ था। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मा कहने लगी, पूछना क्या है, अरे तुम अंधे हो, ये अपने आशिक के साथ मुंह काला करवा कर आई है। मैं तो ये सोच रही थी कि इसके यहाँ पर दोबारा आने की हिम्मत कैसी हुई। मेरे माँ बाप गुस्से में थे और मेरे वालिद भी कहने लगे कि हम इस लड़की को अपने घर में नहीं रखेंगे। मैंने उनसे कहा कि जब तक मैं मलाइका से असल हकीकत ना जान लूं, मैं तब तक कुछ भी नहीं करूंगा। मेरी अम्मा कहने लगी, अरे तुझ पर कौन सा भूत सवार है इस लड़की का? अरे कोई शादीशुदा लड़की ही हो, बच्चों की माँ क्यों ना हो, उसे लोग कबूल कर लेते हैं। मगर जो औरत ऐसी बदकारी करे तो मर्द कबूल नहीं करता। उसकी झूठी कहानी सुनकर इस पर भरोसा करेगा। मैंने कहा, बात तो इससे करनी पड़ेगी। ये कोई गाय, बैल या बकरी नहीं है, बल्कि मेरी बीवी है। इस बात पर माँ गुस्से से मुझे बुरा भला कहने लगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपने कमरे में चला आया। मेरी माँ बाहर से शोर चला चला कर शोर मचा रही थी। बदबख्त इसके कमरे में क्या करने गया है? अरे वो तो तेरे काबिल ही नहीं रही। मैं मलाइका के पास आ गया
जब मैंने उसके चेहरे की जानिब देखा तो उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी। मैं उसके पास बैठ के आंखों के गिर्द हल्के गहरे पड़ चुके थे। चेहरे की रौनक बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मैंने उसके बाल सहलाने शुरू किए। धीरे धीरे से कहा, मलाइका। मैंने देखा उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। वो होश में नहीं थी, लेकिन मेरा हाथ पीछे झटक दिया। कहने लगी, मेरे पास मत आना, खुदा के लिए मेरे पास मत आना। वो डर रही थी, खौफ खा रही थी। एकदम से जैसे उसकी आंख खुली, उसने पहले तो कमरे को देखा, फिर मेरी तरफ देखा और एकदम से उठकर बैठ गई। कहने लगी, उमर मुझे बचा लो, और फिर से रोने लगी। मैंने कहा, मुझे बताओ क्या हुआ है। इससे पहले कि वो कुछ कहते, वो किसी गहरी सोच में खो गई थी और फिर खौफ के मारे नहीं में सर हिलाने लगी। कहने लगी, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये कहकर दोबारा से बेड पर लेटकर रोने लगी। मैंने कहा, मुझे बताओ क्या हुआ है। वो कहने लगी, कुछ नहीं हुआ। ये कहकर वो फिर से सोने की एक्टिंग करने लगी। मैंने कहा, मुझे बताओ तो सही, तुम कहाँ गई थी। वो चुप हो गई, फिर कहने लगी, मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर बता भी दूं तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर सकता। मुझे बताओ, जो अम्मा कह रही है क्या वो सच है। वो कहने लगी, मुझे सोने दो, मैं सोना चाहती हूँ। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बंद आंखों से भी आंसू निकलकर तकिए में गिरने लगे थे। मैंने अपने हाथ से उसके आंसू साफ किए। फिर मैंने कहा, सो जाओ। कुछ ही देर में वो सो चुकी थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे कैसे नींद आ सकती थी। मैं तो उसके लिए मेहरून रंग का खूबसूरत सा लिबास लेकर आया था, चूड़ियां लेकर आया था, और इस बार तो उसके लिए मेकअप भी लेकर आया था। बहुत कुछ सोच कर आया था कि आते ही अबू से कहूँगा मेरी रुखसती करवा दो, क्योंकि मैं बीए कर चुका हूँ और कोई नौकरी भी कर लूँगा और साथ ही साथ तालीम का सिलसिला भी जारी रखूँगा। लेकिन ये नहीं जानता था कि यहाँ आते ही मेरे सर पर क़यामत टूट पड़ेगी। मलाइका को वहीं सोता छोड़कर कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर अपनी चारपाई पर लेट गया। आसमान की तरफ देखने लगा। अचानक मेरी आंख लग गई और सुबह जब मैं उठा तो शोर की आवाज़ से उठा था। मेरी माँ मलाइका का बाजू पकड़े उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल रही थी। मैं उठकर बैठ गया। मैंने कहा, अम्मा ये क्या कर रही हो। मैंने अम्मा के हाथ से उसका बाजू छुड़वाया। वो मेरे बिल्कुल पीछे छुपकर रोने लगी। अम्मा कहने लगी, यहाँ नहीं रह सकती, इसको घर से बाहर निकालो। मैं इस बदनामी की पोटली को अपने घर पर नहीं रखूंगी। मैंने कहा, अभी तक इसने मुझे सच नहीं बताया। मुझे पहले से सच जानना है और फिर ही कोई फैसला करूंगा। मेरी माँ कहने लगी, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। लेकिन हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ। अरे 4 दिन के बाद ये घर आई है अपने आशिक के साथ मुंह काला करवा कर। शोर की आवाज सुनकर मोहल्ले की औरतें भी हमारे घर के अंदर आ गई थी। मलाइका को लेकर सबकी नजरों में अजीब तरह के सवाल थे। मैंने कहा, मलाइका बताओ, तुम कहाँ गई थी। क्या तुम किसी और से मोहब्बत करती थी, किसी और के साथ भाग कर गई थी। वो बिल्कुल गुमसुम सी खड़ी थी। मेरे बार बार पूछने पर भी वो कोई जवाब नहीं दे पा रही थी और उसकी ये चुप मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मैंने मलाइका से कहा, मैं पूछ रहा हूँ कुछ तुमसे, बताओ मुझे, क्यों कुछ बोल नहीं रही हो तुम। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मुझे घर से मत निकालो, मुझे कोई कबूल नहीं करेगा। मेरी माँ कहने लगी, अरे तू रखने के काबिल भी नहीं। जब गलियों में धक्के खाएगी तो तुझे पता चलेगा कि तुमने क्या गुनाह किया है। लोग तुझे पत्थर मारेंगे तो तुझे पता चलेगा कि जो गुनाह तूने किया है वो इतना छोटा नहीं है, वो कितना बड़ा गुनाह है। चल निकल यहाँ से। इससे पहले कि मेरी माँ फिर उसे घर से निकाल दे, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा था। उसके चेहरे की तरफ देखकर ऐसा लगता जैसे किसी ने उसकी ज़बान पर चुप्पी लगा दी हो। उसकी आंखों में कुछ बहुत दर्दनाक दास्तान थी जो वो सबसे छुपा रही थी। मेरी अम्मा कहने लगी, देख बेटा, इसको तो अब गांव वाले यहाँ नहीं रहने देंगे। अगर तू इसके साथ देगा तो याद रख, इसके साथ साथ तुझे भी गांव वाले गांव से निकाल देंगे। मैंने कहा, मगर कोई भी फैसला करने से पहले इससे पूछ तो लेना चाहिए। मेरी माँ कहने लगी, अरे पूछना क्या है इससे, ये तुझसे माफ़ी मांग रही है, इसका मतलब यही है कि ये गुनाह करके आई है। मैंने कहा, अम्मा आप सबके सामने तो वो यही कहेगी ना। अभी मेरी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि उसी वक्त गांव के चौधरी और सरपंच भी हमारे घर पहुंच गए थे। रफ्ता रफ्ता और लोग इकट्ठे होते गए। आधा गांव हमारे घर के सहन में बैठा था।
ملائکہ کی زندگی اور قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ سرپنچ کہنے لگا، ہم ایسی بدکار لڑکی کو اپنے گاؤں میں نہیں رکھیں گے۔ وہ میرے والد سے کہنے لگے، اپنے بیٹے کو بولو کہ اسے طلاق دے دے، پھر ہم اس کا منہ کالا کرا کر اسے گاؤں سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں گے۔ میں چپ چاپ کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ملائکہ ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ اس سے کسی نے بھی کچھ نہ پوچھا۔ میری ماں سرپنچ سے کہنے لگی کہ رات کو 12 بجے کے بعد غائب ہو گئی تھی اور آج 4 دن کے بعد آئی ہے۔ ہم نے دائی کو بھی چیک کروایا ہے، یہ کمبخت گناہ کر کے آئی ہے۔ پر چودھری صاحب نے یہ بات سن کر اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر چودھری صاحب سے کہا، یہ کیسی اندھیر نگری عدالت ہے؟ مجرم سے ایک بار پوچھا جاتا ہے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، آپ نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے، او میاں ٹھنڈے ہو کر بیٹھو، بڑے ہی بے غیرت ہو تمہیں تو اسی وقت اپنی بیوی کو منہ پر تھوک دینا چاہیے تھا، اور تو ہے کہ اس کی طرف داری کر رہا ہے۔ میں نے کہا، ایک بار اس سے پوچھو کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ چودھری صاحب کہنے لگے، ایسا نہیں ہوتا، کبھی چور نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ چور ہے۔ تم اب اس لڑکی کو فوراً طلاق دو۔ میں نے کہا، میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ میری بات سن کر سب حیران تھے۔ سب نے جیسے اپنے منہ میں انگلیاں دبا لیں۔ چودھری صاحب کہنے لگے، جانتا ہے نا کہ اگر تو اسے طلاق نہیں دے گا تو تمہیں بھی گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یہ سن کر سب سے زیادہ حیرت میری ماں کو ہوئی تھی۔ ملائکہ بھی ٹکر ٹکر مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ سب کے سامنے میں نے ملائکہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر اپنے گھر سے باہر نکل گیا۔ میری اماں ہکا بکا مجھے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، بیٹا ایسا مت کر، تو ایسی لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جائے گا۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ ملائکہ بھی یہ سب دیکھ کر تڑپ کر کہنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے قابل نہیں رہی۔ آخر کیوں تم میری خاطر اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور اس کا ہاتھ پکڑے گاؤں سے نکل آیا۔ میں اسے بس تک لے آیا۔ کچھ پیسے میری جیب میں تھے۔ میں نے شہر کی 2 ٹکٹیں لیں اور اسے اپنے ساتھ بس میں بٹھا کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ بھی تو نہیں تھا میرے پاس، نہ ہی کوئی نوکری۔ جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، اس دور میں 14 جماعت پڑھ لینا بہت بڑی بات تھی۔ ابھی نتیجہ بھی نہیں آیا تھا۔ شہر پہنچتے ہی میں نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا کہ جو شہر میں ہی رہتا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور ایک کرائے کا مکان مل جائے۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے پیسے بھی دیے اور چھوٹے سے گھر کا انتظام بھی کروا دیا، جہاں سہولت کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ابھی مجھے رزلٹ سے پہلے کوئی نوکری تو نہیں ملے گی، لیکن میں گھر گھر جا کر ٹیوشن پڑھانے کو تیار ہوں۔ تم کسی فیملی سے میرے بارے میں بات کر دو۔ وہ کہنے لگا، میں چند ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں جو کہ اپنے بچوں کو گھر میں ہی ٹیوشن پڑھانا چاہتے ہیں اور فیس بھی معقول دے سکیں گے۔ یوں اس نے میرے لیے انتظام کروا دیا۔ اب میں اس کام پر لگ چکا تھا۔ ملائکہ اب بھی چپ چپ رہتی تھی۔ صحن میں ہی ایک طرف اس نے مٹی سے چھوٹا سا چولہا بنا لیا تھا، وہاں لکڑیاں جمع کر کے کھانا بنا لیتی۔ چند دن گزر گئے، نہ تو میں نے ملائکہ سے کبھی بات کی اور نہ ہی اس نے مجھ پر کوئی حق جتایا۔ اب پہلے جیسی بات نہیں رہی تھی۔ اس وقت میں 20 سال کا ہوں گا، اس کم عمری میں بھی میں نے اس میں بہت زیادہ تبدیلی دیکھی تھی۔ وہ اپنی عمر سے کافی بڑی اور سمجھدار ہو گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نہایت خوف زدہ رہتی تھی۔ اب میں اس کے خوف سے پریشان ہونے لگا تھا۔ جب میں گھر آتا تھا وہ مجھ سے بھی کچھ گھبرائی رہتی تھی، اس لیے ایک دوسرے سے زیادہ تر دور دور ہی رہتے تھے، لیکن مجھے اس کے بارے میں جاننا بھی ضروری تھا۔ لیکن میں اسے کچھ وقت دے رہا تھا تاکہ وہ کچھ نارمل ہو جائے۔ اور پھر ایک روز جب وہ برتن دھو کر آئی تھی تو میں نے اس سے کہا، مجھے اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، مگر یہ سنتے ہی وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے کہا، دیکھو، میں تمہارا شوہر ہوں اور میں نے اپنی ماں اور گاؤں والوں کی باتوں پر کبھی اعتبار نہیں کیا، کیونکہ مجھے تم پر یقین ہے اور مجھے پتا ہے کہ تم بری نہیں ہو، لیکن سچ جاننا بھی میرا حق ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا؟ وہ بڑی مشکل سے ہمت جمع کرتی ہوئی کہنے لگی، سچ بہت کڑوا ہے اور تم سے سن کر نہیں پاؤ گے، نہ ہی مجھ پر اعتبار کرو گے۔ میں نے کہا، جب تمہاری خاطر اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہوں تو کیا اعتبار نہیں کروں گا؟ وہ رونے لگی اور کہنے لگی، جب سے میں تمہارے گھر رخصت ہو کر آئی تھی تمہاری اماں کے تیور مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے بات بات پر ڈانٹتی تھی، کہتی تھی کہ میرے بیٹے سے دور رہو۔ میں ہر وقت کی ڈانٹ سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک بار میں نے بھی کہہ دیا کہ عمر آئے گا تو میں اس سے صاف صاف کہہ دوں گی کہ تائی اماں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ یہ سن کر تائی اماں مجھے اور بھی برا بلا کہنے لگی۔
उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैंने रोते हुए भी यही कहा कि मैं उमर को सब बताऊंगी। एक बार एक पड़ोसन आई और ताई अम्मा से कहने लगी, मेरी बहू यूं ही जबान चलाती थी। मैं पीर बाबा के आस्थाने पर गई तो उन्होंने ऐसा तावीज़ दिया कि मेरी बहू मेरे आगे जबान चलाना तो दूर की बात, अब आगे से सर भी नहीं उठा सकती। ताई अम्मा मुझे कहने लगी कि पीर साहब के आस्थाने पर जाना है। मैंने इनकार कर दिया तो वो कहने लगी कि अगर तू सीधी तरह मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुझे घसीटते हुए ले जाऊंगी। उनके गुस्से को देखकर मैं वहां चली गई। मेरा वैसे भी उन बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि क्या करवा लेगी मुझ पर। खैर मैं जब वहां चली गई, जब उस पीर ने मुझे देखा तो देखता ही रह गया, जैसे ना जाने मेरे चेहरे पर क्या देख लिया हो। ताई अम्मा को कहने लगा कि तेरी बहू तेरे लिए बदकिस्मत है, ये तेरे बेटे को तुझसे छीन लेगी। उस लड़की का हुस्न तो इस कम उम्री में इसको होश उड़ा रहा है, जब ये कुछ और बड़ी होगी तो तेरा बेटा इसका ही होकर रह जाएगा। ताई अम्मा उसकी बात सुनकर बेहद परेशान हो गई। वो पीर बाबा से कहने लगी, इसका कोई हल भी बता दीजिए, मुझे फिर क्या करना चाहिए। वो पीर ताई अम्मा से कहने लगा, हल है मेरे पास और बहुत अच्छा हल है। ऐसा कर, तू इसे 3-4 दिन के लिए मेरे पास छोड़ जा। मैं इसका ऐसा मुंह बंद करूंगा कि ये कभी जिंदगी में मुंह नहीं खोल पाएगी, और फिर इस पर बदकारी का इल्जाम लगाकर इसे घर से निकाल देना, क्योंकि इस लड़की के काले साए तेरा घर बर्बाद कर देंगे और तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मैं उस पीर की बातें सुनकर रोने लगी और कहने लगी, ताई अम्मा मैं आज के बाद आपके सामने जबान नहीं चलाऊंगी, लेकिन मुझे किसी पीर के आस्थाने में नहीं रहना। खैर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और वो मुझे वापस ले आई। मैंने शुक्र अदा किया कि उनको मुझ पर रहम आ गया। लेकिन फिर उसी रात 12 बजे जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, उन्होंने मुझे आकर उठाया और कहने लगी, मेरे साथ चल। मैंने हैरत से उन्हें देखा और कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना। ये सुनते ही उन्होंने मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया और मेरे दोनों हाथ पीछे ले जाकर बांध दिए। वो मुझे पीर बाबा के आस्थाने ले आई और फिर मुझे वहीं छोड़कर घर आ गई। ये कहने के बाद वो हिचकियां ले लेकर रोने लगी। कहने लगी, मैं आगे अब और कुछ नहीं बता सकती कि उस पीर ने मेरे साथ क्या किया, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि अगर तूने मेरा नाम लिया तो मैं अपनी जिन्नात के जरिए तुझे मरवा दूंगा। फिर वो बुरी तरह रोते हुए कहने लगी कि इसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, वो दरिंदगी दिखाई। उस पीर ने मुझे, वो मुसलसल रोई जा रही थी और मैं उसकी बातें सुनकर सकते में आ गया। फिर मैंने उसे अपने साथ गले लगाया, लेकिन वो फौरन ही घबरा कर पीछे हट गई। फिर कहने लगी, मुझे मर्द जात से डर लगता है, मुझे उनसे खौफ आता है। जो कुछ उसने मुझे बताया, मुझे उसे जानकर बहुत अफसोस हो रहा था और मेरा अपनी माँ की कम अकल पर मातम करने को जी चाह रहा था। पता नहीं वो बहू को अपना क्यों बना कर रखना चाहती थी, यहाँ तक कि उसकी जबान बंदी की खातिर उसे किसी आस्थाने पर छोड़ आई। मेरे पास उसको दिलासा देने के लिए कोई अल्फाज मौजूद नहीं थे, इसलिए मैं कमरे से बाहर आ गया और छोटे से सेहन में बिस्तर और चारपाई बिछा कर लेट। मलाइका की सिसकियों की आवाजें कमरे से बाहर तक आ रही थी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि उसके करीब जाकर उसे मजीद असियत दूं। चंद माह बाद उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। एक रोज जब मैं शाम को घर लौटा तो वह चारपाई पर बेसुध पड़ी थी। मैंने उसे पुकारा तो उसने आंखें खोली, फिर उसे उठा नहीं जा रहा था। मैंने उसे सहारा देकर बिठाया और फिर पानी दिया। वो कहने लगी कि मेरा जी बहुत मतला रहा है। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, मगर जो खबर डॉक्टर ने मुझे सुनाई वो मेरे लिए सुनना बहुत मुश्किल था। वो कहने लगी कि यह हामला है। ये सुनकर मैं उसी जगह खड़ा रह गया, जबकि मलाइका रोने लगी। वो लेडी डॉक्टर मुझसे कहने लगी, इसका शोहर कहाँ है? क्या इसका शोहर या कोई बड़ा इसके साथ आया और आप इनके क्या लगते हैं? मैंने कहा, मैं ही इसका शौहर हूँ। इस पर उस लेडी डॉक्टर ने मुझे सर से लेकर पांव तक देखा और फिर कहने लगी, अरे तुम खुद अभी इतने छोटे से हो और अपनी बीवी को देखो, वो भी इतनी कम उम्र है। मुझे तो समझ नहीं आती कि माँ बाप को बच्चों की इतनी कम उम्र में शादी करने का क्या शौक चढ़ा होता है। देखो तुम्हारी बीवी बहुत कमजोर है और ऊपर से इसकी हालत है, इसलिए तुम इसका बहुत ख्याल रखना। मैंने उसे बस इतना कहा कि मैं ये बच्चा नहीं चाहता। वो कहने लगी, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब तो और भी ज्यादा पेचीदगियां हो सकती है। ये पहले ही बहुत कमजोर है। अगर तुम ये कह रहे कि अबॉर्शन करना है, देखो तुम्हारी बीवी इस चीज की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, इससे इसकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर मैं खुद भी परेशान हो गया था, लेकिन मलाइका के आंसू नहीं थम रहे थे। मैं दवाइयां वगैरह लेकर घर आ गया। घर आकर मलाइका मेरे पास आई, कहने लगी, मुझे अपने आप से घिन आने लगी है।
میں اتنی بڑی اذیت نہیں سہ سکتی۔ میں نے پھر بھی اسے حوصلہ دیا۔ اس وقت میں نے اسے کیسے سنبھالا یہ میں ہی جانتا تھا۔ ایک تکلیف سے میں بھی گزر رہا تھا مگر میں اسے چھپائے ہوئے تھا۔ کسی مرد کے لیے بھی یہ بات آسان نہیں ہوتی کہ اس کی بیوی کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہو، لیکن میں کمزور نہیں تھا۔ پورا عرصہ میں نے اسے سنبھالا اور اسے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ کوئی مجرم ہے۔ اس دوران میں نے پرائیویٹ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا، ساتھ ٹیوشن بھی پڑھاتا رہا۔ میں ہنستے ہنسانے والا انسان اب ایک سنجیدہ انسان بن کے رہ گیا تھا۔ وقت مقرر پر ملائکہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ جب نرس نے بیٹے کو اس کی گود میں ڈالنا چاہا تو اس نے بچے کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، وہ بس روئے جا رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ اسے کسی بے اولاد جوڑے کو دے دو، میں اسے نہیں سنبھال سکتی، یہ میری آنکھوں کے سامنے رہے گا تو مجھے ہمیشہ وہ برا وقت یاد کرواتا رہے گا۔ میرے لیے بھی اسے قبول کرنا تو کافی مشکل تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس بچے کا کیا قصور ہے جو اب اس دنیا میں آیا ہے۔ میں اسے خود پالوں گا، اس کی اچھی تربیت کروں گا۔ قصوروار تو میری ماں تھی اور وہ پیر تھا۔ وہ بچہ میرے ہی گھر میں پلنے لگا۔ بہت جلد مجھے ایک اچھی سی نوکری مل گئی۔ وہ اس بچے سے پیار نہیں کرتی تھی، لیکن میں اپنا دل بہت بڑا کر چکا تھا۔ اس بچے کو بالکل اپنی اولاد کی طرح ہی پال رہا تھا۔ پھر ایک روز مجھے گاؤں سے یہ خبر ملی کہ میری ماں بہت بیمار ہے اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں یہ سنتے ہی ملائکہ کو لے کر گاؤں چلا گیا۔ میری ماں واقعی بہت بیمار تھی۔ وہ چارپائی پر لیٹی میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں نے ملائکہ کے ساتھ بہت برا کیا، اس لیے دیکھو اللہ نے مجھے کیسی بیماری لگا کر بستر سے لگا دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سسکیاں لے کر رونے لگی۔ پھر میری ماں نے اپنے جرم کا اعتراف میرے سامنے کر لیا۔ گاؤں والوں کو بھی عقل آ گئی تھی کہ ملائکہ بے قصور تھی۔ وہ جان چکے تھے کہ جن پیر پر وہ بہت زیادہ یقین رکھتے تھے وہ سب لٹیرے بھی ہوتے ہیں۔ میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ شہر لے کر آیا اور اس کا علاج کروایا۔ کچھ ہی مہینوں میں وہ ٹھیک ہو گئی تو انہیں گاؤں چھوڑایا، لیکن میں گاؤں نہیں گیا تھا بلکہ اپنی رہائش شہر میں ہی رکھی۔ کسی کو بھی یہ نہیں بتایا کہ وہ بچہ کس کا تھا اور کس کا نہیں، یہاں تک کہ اپنی ماں کو بھی نہیں۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزری۔ ملائکہ آج بھی میری بہت عزت کرتی ہے، مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ میرے 2 بچے اور بھی ہیں مگر جیسی محبت ملائکہ اپنے دوسرے بچوں سے کرتی ہے وہ اس بچے سے نہیں کرتی۔ میں اسے کہتا ہوں کہ پرانی باتیں بھول جاؤ مگر وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے جیسا ظرف نہیں رکھتی۔ میں اسے چاہ کر بھی پیار نہیں دے سکتی، شاید ہی میرے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ مگر میرا بیٹا مجھ سے بہت مانوس ہے، وہ ماں سے زیادہ میری بات مانتا ہے اور میں اس کو حافظ قرآن بنا رہا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ وہ ایک نیک مسلمان بنے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ میرا فرض ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا میں نے اس بچے کو اپنا نام دے کر ٹھیک کیا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔